ملتان سے شہر کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور ہبس کا راج ہے۔ نیو ملتان کے چند علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ دہلی گیٹ، پاک گیٹ کے علاقے میں بھی بارش ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہر کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور ہبس کا راج ہے۔ نیو ملتان کے چند علاقوں میں ملتان میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ دہلی گیٹ، پاک گیٹ کے علاقے میں بھی بارش ہوئی ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے بلال نیازی سے۔ بلال بتائے گا موسم کیسا ہے اب؟ جی بالکل، ملتان میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں آج وقفے سے جو بارش کا سلسلہ ہے عصر کے بعد سے شروع ہوا ہے اور اس حوالے سے ملتان میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بھی یہاں پر بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے، گلیوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اس حوالے سے جو ہم ملتان کا ٹیمپریچر روزانہ کے حساب سے دیکھ رہے تھے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا، جس کے باعث شدید گرمی تھی اور ہبس کا بھی ہم سلسلہ دیکھ رہے تھے گزشتہ 3 دنوں سے۔ لیکن اب ہوا کا سلسلہ بھی جاری ہے، بادل بھی ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے، رم جھم کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث جو ٹیمپریچر ہے اس میں کافی کمی آئی ہے۔ اور اس وقت ملتان کے علاقے نیو ملتان میں، اس کے علاوہ جو ملتان کے دیگر علاقے ہیں، خانواہ روڈ کی بات کر لیں، چوکمارا کی بات کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ ممتاز آباد اور جو اس کے علاوہ دلی گیٹ ہے، ان علاقوں میں بھی وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ مزید اگر یہ ٹیمپریچر ہے اس میں مزید کمی آئے گی اور اس حوالے سے جو آج شام تک مزید بارش برسنے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بلال نیازی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ملتان میں قدرت نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو امتحان میں ڈال دیا۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں بارش، محکمہ موسمیات کی موبائل ایپ پر بارش کا امکان ہی ظاہر نہیں کیا گیا۔ بارش کے دوران بھی موبائل ایپ کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ موسم کی اپڈیٹ میں بھی آج بارش کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں قدرت نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو امتحان میں ڈال دیا۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں بارش، محکمہ موسمیات کی موبائل ایپ پر بارش کا امکان ہی نظر نہیں آیا۔ بارش کے دوران بھی موبائل ایپ کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ موسم اپڈیٹ میں بھی آج بارش کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر قدرت نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو امتحان میں ڈال دیا۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں بارش، محکمہ موسمیات کی موبائل ایپ پر بارش کا امکان ہی ظاہر نہیں کیا گیا۔ بارش کے دوران بھی موبائل ایپ کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ موسم کی اپڈیٹ میں بھی آج بارش کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملتان میں قدرت نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو امتحان میں ڈال دیا۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، محکمہ موسمیات کی موبائل ایپ پر بارش کا امکان ہی ظاہر نہیں کیا گیا۔ بارش کے دوران بھی موبائل ایپ کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا گیا۔ موسم کی اپڈیٹ میں بھی آج بارش کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی بلال نیازی نے۔ جی بلال بتائیے گا کہ موبائل ایپ میں بارش کا کوئی امکان ہی ظاہر نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، اس حوالے سے اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو ملتان میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اگر ہم محکمہ موسمیات کی ایپ کی بات کریں تو وہاں پر بارش کا کوئی امکان نہیں بتایا گیا۔ اور اس حوالے سے وہاں پر جو ملتان کا ٹیمپریچر تھا وہ بھی اس حوالے سے زیادہ بتایا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے اس کو اپڈیٹ نہ کرنے کے باعث شہری بھی کنفیوز ہوئی، کیونکہ شہری بھی وقتاً فوقتاً ملتان کے ٹیمپریچر کو جاننے کے لیے محکمہ موسمیات کی ایپ کو وزٹ کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے کیونکہ ملتان کے دیگر علاقوں میں، جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری تھا اور اس حوالے سے جو محکمہ موسمیات کی ایپ تھی اس کو جو ہے اس میں اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ جبکہ ابھی بھی ملتان میں اس وقت موسم کافی آلود ہے، آندھی چل رہی ہے، بارش وقفے سے جاری، لیکن محکمہ موسمیات کی اپلیکیشن کے مطابق ابھی بھی جو ملتان میں بارش کا کوئی امکان نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ٹیمپریچر ہے وہ 39 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم اب کے ٹیمپریچر کی بات کریں تو اب ٹیمپریچر 36 ڈگری تک پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے ابھی بھی یہاں پر وقفے محکمہ موسمیات کی ایپ میں بارش کا امکان ہی ظاہر نہیں کیا گیا۔ بہت شکریہ بلال نیازی، آپ ملتان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو اب خبر دیں گے ڈی جی خان سے، جہاں شہر اور گرد و نواح میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی خان سے، اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف ذیشان صفدر سے۔ ذیشان بتائے گا موسم کیسا ہے ڈی جی خان کا؟ بادلوں نے ڈیرہ غازی خان شہر کا رخ کر لیا ہے اور شہر میں موسلا دھار بارش جاری ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جل تھل کا سما ہو چکا ہے۔ تمام روڈ جو ہیں شہر کے وہ سارے کے سارے پانی سے بھر چکے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ جتنے بھی شہری سفر کر رہے تھے بائک پہ یا رکشوں پہ، وہ سارے کسی ایسی جگہ پہ رک گئے ہیں جہاں پہ بارش نہ پڑے۔ اور اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بارش میں ان کو کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے بتائیے گا، بڑے عرصے بعد بارش ہوئی ہے، موسم تھوڑا سا سرد ہوا ہے، ٹیمپریچر میں کمی آئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
माशाल्लाह ज़बरदस्त बारिश हो रही है, सारे मौसम ठंडा हो गया, तूफ़ानी बारिश है, माशाल्लाह सही है, सब लोग बारिश महसूस कर रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, ज़बरदस्त बारिश है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ठंडी बारिश हो रही है और इस टाइम यहाँ पे देख सकते हैं आप किस कदर मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। यहाँ पे किस कदर तेज़ हवाओं ने डेरा गाजी खान का रुख किया है और जिससे गर्मी का जो ज़ोर था वो भी टूट गया है और इस वक्त मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और इसके साथ साथ तेज़ हवाएं भी पूरे शहर और गिरदोनवा में जारी हैं। खुशगवार हो गया है। ब्यूरो चीफ ज़ीशान सफदर आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। जाहिद जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। इनाम गनी को एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जुलाई के पहले हफ्ते में फाल होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आला पंजाब जनूबी पंजाब एडिशनल चीफ का ऑफिस मुल्तान में बनेगा, जबकि एडिशनल आईजी ऑफिस बहावलपुर में बनेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हदूद पंजाब के 16 अजला तक होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त। जाहिद जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। इनाम गनी को एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जुलाई के पहले हफ्ते में फाल होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ऐसा कहना है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का, जबकि जनूबी पंजाब एडिशनल चीफ का ऑफिस मुल्तान में बनेगा। एडिशनल आईजी ऑफिस बहावलपुर में बनेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हदूद पंजाब के 16 अजला तक होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। जाहिद जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। इनाम गनी को एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जुलाई के पहले हफ्ते में फाल होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। जाहिद जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि इमाम गनी को एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जुलाई के पहले हफ्ते में फाल होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ऐसा कहना है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का, जबकि जनूबी पंजाब एडिशनल चीफ का ऑफिस मुल्तान में बनेगा। एडिशनल आईजी ऑफिस बहावलपुर में बनेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हदूद पंजाब के 16 अजला तक होंगे। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। जाहिद जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं। इनाम गनी को एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया, जबकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जुलाई के पहले हफ्ते में फाल होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जनूबी पंजाब एडिशनल चीफ का ऑफिस मुल्तान में बनेगा, जबकि एडिशनल आईजी ऑफिस बहावलपुर में बनेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हदूद पंजाब के 16 अजला तक होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। जाहिद जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं, जबकि इनाम गनी को एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे एडिटर रोहित जमशेद रिजवानी साहब से। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जुलाई के पहले हफ्ते में फाल होने जा रहा है, क्या राय है आपकी? मेरा ये ख्याल है कि जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है और ये वो खबर है जिसका इंतजार उन्हें कई सालों से था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगरचे कहा यही था कि पहले 100 दिन में हम बनाएंगे, सूबा बनाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आईनी और सियासी मजबूरियों की वजह से वो ये तो नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने तकरीबन 2 साल बाद इसकी तरफ पेशरफ्त जरूर की है इस शक्ल में कि यहाँ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम किया जा रहा है। ये वादा पिछले साल भी था और पिछले साल भी बजट में 3 अरब रुपए रखे गए थे। लेकिन जाहिर है कि किन वजूहात पर अब तो ये कहा जा सकता है कि शायद आखिरी 3-4 महीनों में कोरोना की वजह से वो तो नहीं, लेकिन अब बहरहाल 1.5 अरब रुपए आपने भी कहा बजट में रख दिए गए और तैनात कर दिए गए हैं। बाकायदा तैनाती अमल में आई है और जाहिद अख्तर जमान जो हैं उनके लिए जनूबी पंजाब नया नहीं है, इसलिए कि वो मुल्तान जो एक बड़ा शहर है जनूबी पंजाब का सबसे, वो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ फराइज अंजाम देते रहे हैं और अब तो वो सेक्रेटरी इरिगेशन थे इस वक्त पंजाब के, तो उसके उनके लिए ये पूरा एरिया जाहिर है कि एक जाना पहचाना एरिया है। वो इस इलाके के मसाइल को समझते हैं और यकीनन उनकी तैनाती एक अच्छी तैनाती है कि इस इलाके में वो पहला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे आ रहे हैं और
وہ جانتے ہیں کہ اس علاقے کے عوام کے مسائل کیا ہیں، اور وہ یقیناً اپنا جو ایک پروفیشنل بطور افسر، سینئر بیوروکریٹ افسر، جو ان کی اوپینین ہوگی، جو ان کے فیصلے ہوں گے اور جو ان کا انتظامی کنٹرول ہوگا، وہ یقیناً اس کو سپورٹ کرے گا حکومت کے اس فیصلے کو۔ جی رضوانی صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ 2 سال بعد پیش رفت ہوئی ہے، 3 ارب روپے رکھے گئے تھے اور 1.5 ارب اب جو ہے وہ بجٹ میں رکھ دیے گئے ہیں، تو یہ سیکریٹریٹ کب تک فعال ہوگا، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ دیکھیے، اس وقت جو وزیر اعلیٰ کا ٹویٹ ہے، اور آپ نے بھی ساتھی اینکر نے بھی جو انفارمیشن اپنے روہی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے تحت آئندہ ہفتے میں 1 ہفتے کے اندر مطلب یہ لوگ اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے ہیں جو یقیناً روہی کی اسکرین پر بھی شیئر کیے گئے ہیں، اور تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ افسر تعینات ہو گئے، بجٹ مختص ہو گیا، اب تو صرف امپلیمنٹیشن ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ملتان بیٹھے گا اور ایڈیشنل جو آئی جی ہیں وہ بہاولپور بیٹھیں گے، لیکن میرے نظر میں یہ ابھی چاہے وہ چند گھنٹے بعد ہو، 1 دن بعد ہو، ابھی یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ کون کہاں بیٹھے گا۔ سیاسی طور پر ملتان اور بہاولپور کے درمیان، ان کی سیاسی لیڈرشپ کے درمیان، عوام کے درمیان نہیں، تو اس کے اوپر بھی یہ ضرور ہے کہ سیکریٹریٹ کہاں ہو اور بڑا انتظامی افسر کہاں بیٹھے گا۔ یقیناً حکومت اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے فوری اناؤنسمنٹ باقاعدہ طور پر بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ بہرحال ابھی تک اب سوال یہ ہے کہ بھائی اب ایڈیشنل چیف سیکریٹری ملتان بیٹھیں گے یا بہاولپور بیٹھیں گے، ایڈیشنل آئی جی جو ہیں وہ ملتان بیٹھیں گے یا بہاولپور بیٹھیں گے۔ اس وقت اس خبر کے بعد کہ جی تعیناتی ہو گئی ہے، اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ سیکریٹریٹ کہاں، کون سا افسر کہاں بیٹھے گا، اور یہ سوال اس وقت زیر بحث ہے، شرطیں بھی لگ رہی ہیں اور لوگ اس پر ڈسکس بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ میرے حساب سے ابھی اس کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، لیکن پبلک نہیں ہوا، اور یہاں ابھی ملتان کی انتظامیہ کی حد تک اس وقت تک شاید ابھی نہیں بتایا گیا کہ یہاں کون سا افسر بیٹھے گا۔ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے جنوبی پنجاب ایڈیشنل چیف کا آفس ملتان میں بنے گا، ہدایات دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ ایڈیٹر روہی جمشید رضوانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب خبر ہے خانیوال سے، جہاں پر ڈسٹرکٹ ایگریکلچر ٹاسک فورس اور ایڈوائزری سب کمیٹی کا اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس شرازی نے کی۔ اجلاس میں اے ڈی سی آر، اسسٹنٹ کمشنرز کی شرکت، محکمہ زراعت اور لائیو سٹاک اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی ہے۔ کاشتکار نمائندگان کی جانب سے بھی شرکت کی گئی۔ ڈی سی کا ٹڈی دل کی تدارک کے لیے آگاہی، سرگرمیوں میں سستی پر اظہار برہمی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی محکمہ زراعت کو موضوع لیول کمیٹیاں فعال کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ غیر معیاری زرعی ادویات، بیج، کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا۔ محکمہ لائیو سٹاک کو جانوروں کی ویکسینیشن پلان سے کاشتکاروں کو آگاہی کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں خانیوال سے، جہاں ڈسٹرکٹ ایگریکلچرل ٹاسک فورس اور ایڈوائزری سب کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس شرازی نے کی ہے۔ آپ کو بتائیں، پاکستان کے بڑے جنگل لال سوہانرہ سے لکڑی چوری پر ڈی سی کا نوٹس سامنے آیا ہے۔ ڈی سی آفس میں لال سوہانرہ سے لکڑی چوری کے خاتمے کے لیے اہم اجلاس ہوا۔ لکڑی چوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ڈی سی مظفر خان سیال کا ایسا کہنا ہے، جبکہ لکڑی چوروں کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ نیشنل پارک کو مزید خوبصورت بنایا جائے گا۔ نیشنل پارک کے رقبے پر زیادہ سے زیادہ درخت بھی لگائے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، پاکستان کے بڑے جنگل لال سوہانرہ سے لکڑی چوری پر ڈی سی کا نوٹس سامنے آیا۔ ڈی سی آفس میں لال سوہانرہ سے لکڑی چوری کے خاتمے بارے اہم اجلاس ہوا۔ خبر ہے لیا سے، کمشنر ڈی جی خان ساجد ظفر کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء نے کمشنر کو بریفنگ دی۔ سیلاب، کورونا اور ٹڈی دل سمیت دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں زاہد سرفراز۔ کمشنر ڈی جی خان ڈویژن ساجد ظفر ڈال نے آج لیا کا دورہ کیا، اور دورے کے دوران انہوں نے یہاں پر ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر میٹنگ کے انعقاد کی، میٹنگ کی صدارت کی، جس کے اندر ڈپٹی کمشنر لیا، اصفر ضیاء اور تینوں تحصیلوں کا جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، دیگر افسران، ان کو یہاں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج کے وزٹ کے حوالے سے جو ابھی آپ نے میٹنگ کی صدارت کی، اس حوالے سے مزید کیا بتائیں گے؟ سر جی،
थैंक यू जी। ये मेरा सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं कुछ बाकी मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा मुझे देर हो गई। मेरा ये लिया में पहली दफ़ा आया हूँ और ये फॉर्मली मेरा एक डिस्ट्रिक्ट विज़िट था और इसमें जो डिप्टी कमिश्नर है असफर साहब, उन्होंने मुझे तमाम जो एक लिया की सूरत हाल है तमाम सेक्टर्स की, ना सिर्फ तरक्याती जो है वो हवाले से, बल्कि बाकी भी तमाम जो लिया में इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, बाकी जो गवर्नमेंटल कैंपेन्स चल रही हैं, उसके हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी जिसमें तमाम मुतलका अफसरान भी मौजूद थे, फिर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, ADCs, ये सब लोग मौजूद थे। मैं आपको इसमें ये बताऊं कि कमिश्नर मेरा ये फीडबैक ये है कि लिया में जो है वो डिप्टी कमिश्नर की सदारत में और बाकी जो टीम यहाँ पे मौजूद है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो वैसे तो मेरे इल्म में रहती है, लेकिन आज आके मुझे ये देख के खुशी हुई है कि ये तमाम लोग जो है वो कोशां है एक टीम के तौर पे लिया की बेहतरी के लिए। तो मज़ीद जो है वो बहुत सारी जो है वो चीज़ें मैंने इस ब्रीफिंग के दौरान महसूस भी की, कुछ चीज़ें मैं नोट भी करके जा रहा हूँ जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब से डिस्कस करके मेरे जहन में हैं वो चीज़ें कि जहाँ पे छोटे छोटे ऐसे मसाइल हैं जो कि मैं भी कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह जो है वो। ये फरमाइएगा सैलाब तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। जाहिद सरफराज आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां DSP पिपला शाहिद नजीर का तबादला कर दिया गया। DSP शाहिद नजीर का तबादला साहिवाल कर दिया गया। DSP शाहिद नजीर को तबादला करके साहिवाल भेज दिया गया, जबकि मलिक तसव्वुर अली नोनारी को DSP पिपला तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मियांवाली से, जहां पर DSP पिपला शाहिद नजीर का तबादला कर दिया गया। DSP शाहिद नजीर का तबादला साहिवाल कर दिया गया है। मलिक तसव्वुर अली नोनारी को DSP पिपला तैनात कर दिया गया। अहम तैनातियां सामने आई हैं। मियांवाली में DSP पिपला शाहिद नजीर का तबादला कर दिया गया है। DSP शाहिद नजीर को साहिवाल लगा दिया गया है। मलिक तसव्वुर अली नोनारी को DSP पिपला तैनात कर दिया गया। आपको अपडेट करें मियांवाली से, जहां DSP पिपला शाहिद नजीर का तबादला कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नाराज MNA अहमद हुसैन को बैठक के लिए बुला लिया। मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान से मुलाकात। अहमद हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहव्वुज़ात से आगाह किया। इमरान खान पहले भी मेरे लीडर थे, आज भी मेरे कायद हैं। इमरान खान तक आम आदमी और कारकुनान की बात पहुंचाई। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान आम आदमी के हालात बेहतर करेंगे। अहमद हुसैन ढहेड़ का ऐसा कहना था, जबकि उनका मजीद ये कहना था कि मैं कारकुनान की आवाज बना और कारकुनान की तर्जुमानी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाराज MNA अहमद हुसैन ढहेड़ को बैठक के लिए बुला लिया। आपको बताएं, मुल्तान में मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का आज पहला यौम तासीस मनाया गया। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सलेमान सिद्दीकी ने साथियों के हमरा केक काटा। इसी बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे इकबाल सादिक। इकबाल अपडेट कीजिएगा। आज मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का यौम तासीस मनाया जा रहा है। एक साल पहले यह तंजीम मार्ज़ वजूद में आई थी और आज इसकी पहली जो है वो यौम तासीस मनाई जा रही है। यहाँ पर चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सलेमान मौजूद हैं और दीगर जितने भी ओहदेदारान हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो बात करते हैं जो मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। मुझे बताइएगा, लीडर तो आप पुराने हैं, पहले आप ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के लीडर थे, अब आपने इस तंजीम को अलसर नो बना है, 1 साल हो गया, यौम तासीस मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि पहले मैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान में था। जब ये हमने देखा कि वो तंजीम काम नहीं कर रही तो इस वजह से हमने एक मरकज़ी तंजीम वजूद में ले आए जिसका नाम था मरकज़ी तंजीम ताजरान। और आपको ये भी याद होगा कि ठीक 1 साल पहले 30 जून को ही हमने मुल्तान से ही इसकी इब्तदा की थी और अल्लाह ताला की रहमत से इस 1 साल में जो इस तंजीम ने तरक्की की है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। और आपने यहाँ का कन्वेंशन भी देखा, गालिबन कम से कम 3000 ताजिर उसमें शरीक था। अच्छा, अब फ़र्क क्या आया इसके बाद? उस तंजीम के आप चेयरमैन थे और अब इस तंजीम के चेयरमैन है, फ़र्क क्या है? काम में क्या फ़र्क आया? ताजरों की बेहतरी के लिए आपने क्या किया? देखा ना, काम में फ़र्क तो आपने देखा है
इसमें सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के मसले आए हैं 1 साल में, हमने वो तमाम हल किए हैं। अब ये जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में हमारा मुतालबात जो था वो पूरा माना गया। हमने पहले 15 दिन तो लॉकडाउन किया है, उसके बाद हमने 5 बजे तक शॉप्स खुलवाई हैं, फिर 7 बजे तक भी खुलवाई हैं। आपने देखा होगा कि ईद के लास्ट 2-3 रोज़ जो हैं वो हमने 10 बजे तक भी खुलवाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम 7 बजे तक शॉप्स खोल रहे हैं। और कोरोना जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना एक वबा ऐसी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। हम एक तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे निजात दिलाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, इनके साथ जो इस वक्त टीम है वो अच्छी है, जितने भी ताजुर्त मसाइल हैं वो हल किए जा रहे हैं। जी, मरकजी तंजीम ताजरान का पहला यौम तासीस मनाया जा रहा है। इकबाल सादिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए फंड्स जारी। हुकूमत पंजाब की जानिब से 7 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स जारी हुए। फंड से निश्तर अस्पताल में कोरोना के हवाले से सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा, ऐसा कहना है प्रिंसिपल निश्तर कॉलेज का, जबकि उनका मजीद ये कहना है कि हुकूमत पंजाब इससे कबल 10 करोड़ रुपए के फंड्स दे चुकी है। मजीद फंड्स मिलने से सहूलियात में बेहतरी आएगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से मुल्तान से, जहां निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। अपडेट करेंगे आपको डीजी खान से, जहां जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जनूबी पंजाब में 11 नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स बनाए जाएंगे। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी PMA सरदार अहमद अली दरेशक का ऐसा इकदाम सामने आ गया। कोटचट्टा, शदानलुड, सखी सरवर में अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाए जाएंगे। MPA, सनावा, सैदपुर, फाजलपुर और अराजी रिकॉर्ड सेंटर तामीर होंगे। अहमद अली दरेशक, कोटमिटन, मोहम्मदपुर में भी अराजी रिकॉर्ड सेंटर तामीर होंगे, ऐसा कहना है सरदार अहमद अली दरेशक का। जबकि हाजीपुर, दाजिल, उमरकोट में भी अराजी रिकॉर्ड सेंटर की मंजूरी दे दी गई है। MPA का ऐसा कहना है कि पंजाब हुकूमत शहरियों के मसाइल के हल के लिए कोशां है। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर की मंजूरी दी गई है। बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू होने लगा। दिन भर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन अपनी इस रिपोर्ट में। बहावलपुर शहर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। बहावलपुर और गिरदोनमा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 4-4 घंटों से बिजली गायब है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी से लोग निडाल हैं और कारोबार ठप हो गए। महाजर कॉलोनी, हमायतियां, मेला बाजार, बदरशेर, अमामी कॉलोनी, अंदरून शहर और सैटेलाइट टाउन में भी बिजली गायब है। दूसरी जानिब मेपको हुकाम ने मौकफ इख्तियार किया है कि शदीद गर्मी के बायस ओवरलोड होने के बायस फीडर ट्रिप कर जाते हैं, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। बात करेंगे शोबिस के हवाले से। शोबिस सितारे अपने घरों में भी महफूज नहीं है। मारूफ स्टेज अदाकारा नैना चौधरी के घर पर ओबाशों की मुबैना तौर पर फायरिंग सामने आई है। थाना कुतुबपुर पर पुलिस मदद नहीं कर रही है। अदाकारा नैना चौधरी का ऐसा कहना है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा क्या मामला है ये। जी बिल्कुल, मुल्तान के स्टेज आर्टिस्ट अपने घरों में भी महफूज नहीं रहे। मुल्तान की मारूफ स्टेज आर्टिस्ट नैना चौधरी के घर पर गुज़िश्ता दिनों फायरिंग हुई, लेकिन उसका वक़ुआ ताहाल जो है वो दर्ज ना हो सका। इस वक्त हमारे साथ नैना चौधरी खुद मौजूद हैं। नैना, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? कितने अरसा पहले जो है फायरिंग हुई और अब क्या सूरत हाल है? तो मैंने 15 की और उसके बाद पुलिस आई, उनको खोल बरामदी दी। उन्होंने मोहल्ले से सबसे पूछताछ की, सब ने कहा कि यहाँ पे फायरिंग की गई है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको किसी पे शक हो या आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो तो आप बता सकती हैं। तो मैंने उनको बोला कि 1-2 बार इन लोगों ने की है मेरे पे फायरिंग पहले भी, और उनके नाम जो भी था मैंने उनको सारी डिटेल दी है। बताएं कि आप बजाते खुद एक एक्टर हैं और आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट के घरों पर इस तरीके से ओबाशों के हाथों से हमले हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तमाम मुल्तान आर्टिस्ट एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए आप बाकी तमाम आर्टिस्टों के हवाले से क्या कहेंगी इस तरह के इक़दाम पर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि कोई भी है तो वो अपना करके खाता है, कोई किसी के लिए या किसी के पीछे नहीं रहता, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं करो कि आपकी जान के दुश्मन बन जाए। और जो मेरी जान के और मेरी बेटी के जान के दुश्मन बने हुए हैं वो मैं इतना बोल सकती हूँ उनके लिए कि मैंने उनके लिए अच्छा ही सोचा है हमेशा।
उन्होंने मेरे साथ नाजायज दुश्मनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मुझे इस मुल्तान से निकालना चाहते हैं। हमारे साथ मुल्तान की मारूफ स्टेज आर्टिस्ट नैना चौधरी मौजूद थी, जिनके इस हवाले से ये कहना था कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन कुछ अवाश लोगों के हाथों को परेशान है और इनका इस हवाले से ये कहना है कि घर पर आए रोज जो है वो फायरिंग कर दी जाती है, जिसका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाता। और इनका इस हवाले से ये कहना है कि थाना कुतुबपुर अदाकारा का कहना है कि पुलिस मदद नहीं कर रही। वसीम शहजाद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बहावलनगर में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी दरिया सतलुज बाबा फरीद पुल के मकाम पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। इस हवाले से अपडेट करें अपनी इस रिपोर्ट में राना फैसल रहमान। बहावलनगर में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू 1112 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। मॉक एक्सरसाइज डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून की जेर निगरानी की गई। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून ने रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद रेस्क्यू समेत दीगर मुतलकादारों की कारकर्दगी को जांचना होता है। जो हमारे नौजवान हैं उनकी प्रिपेयरनेस को गेज करेंगे। अभी तक माशाल्लाह ये वैसे भी अदरवाइज लोगों को रेस्क्यू करते रहते हैं, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, इसकी वजह से हम इस मॉक एक्सरसाइज को करते हैं। तो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड इंशाल्लाह, हमारी ये जो रेस्क्यू वालों ने इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1112 के अलावा मुतल्लिका तमाम महकमों के एहलकारों ने अपनी अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू के तमाम आलात के फंक्शनल होने का मुआयना भी किया। मशकों में रेस्क्यू जानबाजों की कारकर्दगी 100% रही। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू जानबाज हमा वक्त तैयार हैं। कैमरा टीम के हमरा राना फैसल रहमान, बहावलनगर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियांवाली के शहीद नाइक मोहम्मद अकरम ने 30 जून 2007 को कश्मीर में दरियाए नीलम के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। उनकी आज 13वीं बरसी मनाई गई। शहीद की बेवा कहती हैं कि उन्हें अपने खाविंद की शहादत पर फख्र है। मियांवाली के नवाही इलाका चक 14 ML से ताल्लुक रखने वाले नाइक मोहम्मद अकरम ने 30 जून 2007 को कश्मीर में दरियाए नीलम के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। शहीद की 13वीं बरसी पर उनकी बेवा का कहना था कि नाइक मोहम्मद अकरम शहीद की शहादत पर फख्र है। वो इंतहाई पुरखुलूस और नेक तबीयत इंसान थे। बहुत खुशी है, दुख भी है, बेसहारा हो गए। अल्लाह दा सहारा नाल है साडे जी। बहुत खुशी है। 4 बच्चियां, 2 बेटे है मेरे जी, माशाअल्लाह उन्हां दी शादी भी कर दी मैं। शहीद दे सदके अल्लाह पाक ने मेरे ते बड़ा करम किया। बड़ी खुशी है सानू इस गल दी, अल्लाह सोने ने साथ बड़ा दिता। शहीद की बेवा ने बताया कि उनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। शहीद के नवासे हैदर अली का कहना था कि वो भी अपने नाना की तरह पाक आर्मी में नौकरी करके मुल्क को। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।